The Power of Music. This poem is written by Sukumar Ray. So Sukumar Ray, he was like a fantastic Bengali poet, and at an early age he started writing verses which was specifically made for children. वो ऐसे poems बनाता था which were specifically for children. तो that means they were like humorous and amusing type of poems. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि which was satirical and ironical. वो basically ऐसे मज़ेदार से poems थे which was for children. सो ये पावर ऑफ म्यूजिक जब पोम उन्होंने लिखी है, दिस इज अगेन वन ऑफ द पोम विच वॉज रिटन फॉर चिल्ड्रन. एंड ये पोम वैसे उस टाइम में लिखी गई थी विच वॉज लाइक अराउंड प्री इंडिपेंडेंस का जो टाइम था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था 90s में, दिस पोम वॉज रिटन. और इधर मैं एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी बताऊंगी इस पोम का, विच वैसे मेंशन तो नहीं है बुक में इसके बारे में कहीं भी, बट एक हाँ एक आइडिया है जिसके जो कि हम थोड़ा बहुत लगा सकते हैं अबाउट द आयरन ऑफ दिस पोएम, कि ये पोएम एक इनडायरेक्टली किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो हमें बस एक आइडिया लगा सकते हैं उसके बारे में, जो कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी. बट उस अच्छा तो मैं लास्ट में बताऊंगी. अब इस पोएम के बारे में देखते हैं पोएम है किस बारे में. The poem is basically like a very nonsense type of poem. It is a nonsense verse, means like it does not convey much of a music. It is like a very light-hearted and amusing type of poem, more like a comic, you know, something which is a comic verse. So and it is mainly meant to amuse the readers. Its main aim is to amuse the readers and the children. So now we will start the poem, but I will give you like a background. So this poem is about a singer Bhishma Lochan Sharma. He is a person who is a very loud singer. Like he loves to sing, but he's a very loud singer, and due to his loud singing, many people around in the surroundings, they are very disturbed due to this, and it also leads to chaos. And the poet adds fantastic events, and it uses a lot of over exaggeration. The events which are taking place in the poem, of course they do not convey much sense, so they're over exaggerated to make us laugh. So it is like a humorous poem. And then at the end the poet also gets there's a consequence of a singing also that we will see. So before we start the poem, let us talk about the title of the poem, that is The Power of Music. What does this indicate? Music is something we all love to listen. Music is very pleasant when it is subjected to our ears. We feel relaxed and nice. But the satire about this title is that this title is satirical because music, it is not pleasant in this case. Here, music is not something which is very pleasant. Bhishma Lochan is singing a song, but that music has turned into noise. He sings so bad that the music is not music anymore, and it is now in the form of noise. That is the satirical thing about this title. Okay, so like the title suggests, that noise in the name of music is as bad as anything can be. That is the satire. So this was about the title. Okay, now let us start with our poem. So when summer comes, we hear the hums. Summer, summer is a season where you feel like a lot sweaty, and the humid conditions. But it is also like a season of liveliness. So we can have two meanings from this line. When summer comes, we hear the hums. Bhishma Lochan Sharma. So when summer comes, we hear the hums. Hums means singing sounds. So we hear the singing sounds of Bhishma Lochan Sharma. So in the months of summer, Bhishma Lochan Sharma starts singing. So he sings, and we hear his singing in the summer. But his singing is so bad. एक तो ये कि summer is already a month of very, it is a very sweaty type of month. We feel humid, hot and humid, and we feel uncomfortable. So already when we are so irritated due to the humid conditions, hot and humid conditions, Bhishma Lochan Sharma, he starts singing uh, with that like a very irritated noise, like the noise which is not like a discordant voice. So he sings with his discordant voice. So we're already irritated, so we feel more irritated. But it can also mean like summer is a month of liveliness. So when there is like a we expect that, oh, it is summer now, we will feel liveliness and like joy.
So in that the month of liveliness, Bhishma Lochan Sharma starts singing, and he ruins everything. He ruins all that liveliness, and then the people feel irritated. So here we hear the hums of Bhishma Lochan Sharma in summers. You catch his strain on hill and plain from Delhi down to Burma. So strain means the singing sounds of Bhishma Lochan Sharma. So we can hear the sounds of, we can hear the hums of Bhishma Lochan Sharma on hill and plain. We can hear his sounds on hills, plains, and valleys from Delhi down to Burma. You know, it is a very huge distance. Delhi से लेकर बर्मा तक. Burma is Myanmar in present day, so it is not even in India. It is like a neighboring country. So Delhi से लेकर बर्मा तक तुम्हें भीष्म लोचन शर्मा की आवाज सुनाई दे सकते हो. तो दिस इज द ओवर एग्जैजुरेशन. सो दो इन ट्रू सेंस वी कैन नॉट हेयर द साउंड. देखो साउंड की इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं हो सकती कि वो बर्मा से कोई साउंड आ रही है वो हमें दिल्ली तक सुनाई दे. तो इतनी तो नहीं होती इंटेंसिटी. सो हेयर इट इज ओवर एग्जैजुरेशन कि भीष्म लोचन शर्मा इतनी ज़्यादा नॉइसी है, इतनी ज़्यादा लाउड है दैट वी कैन हेयर इट ऑन हिल और प्लेन फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा. He sings as though he's taken his life. He sings as though he's hell-bent. तो वो ऐसे गाता है as though he's taken his life. Means he sings as if his life is staked on it. His life is bet on it. कि उसने अपनी लाइफ से bet करे कि वो गाता ही रहेगा. कि उसकी वजह से उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है इस चीज़ पे. So he sings as his life depends on it. Okay, like as he has bet his life on singing, so he sings in such a manner. He sings as though he is hell-bent. Hell-bent, it is like a rhyming word used here, which amuses the readers. So he sings as though he is hell-bent, means as he is very determined. So मतलब वो गाता ही रहेगा. Like he is determined to sing without bothering about the consequences. वो stubborn है and he will sing. Okay. The people dazed retire amazed although they know it's well meant. देखो dazed retire amazed Z का काफी use हो रहा है तो like it's rhyming and well meant is it is again rhyming. जो लोग हैं यहाँ पे impact कि यहाँ पे एक इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पे कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके सिंगिंग का. सो द पीपल दे आर डेज्ड यानी कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ बैफलनेस. लाइक वो बैफल्ड है. दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग. उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So they're not able to think clearly. So people daze, retire, amazed, now they're confused. Although they know it's well meant. तो वो लोग जो परेशान हो रहे हैं but they also know it's well meant. उसको पता है जो गाना है it is द भीष्म लोचन है. जो गाना गा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाना है उसका भी कुछ मीनिंग है. एंड सेकेंडली जो गाना गा रहा है भीष्म लोचन वो किसी गलत इंटेंशन से नहीं गा रहा. ही इज नॉट इंटेंडेड टू मेक अस फील इरिटेटेड. वो तो बस गा रहा है बट वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि उसकी सिंगिंग से कितना क्योस क्रिएट हो रहा है. लोग कितने परेशान हो रहे हैं वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है. बट भीष्म लोचन की कोई गलत इंटेंशंस नहीं है. वो बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं बट नेवर द लेस वो इरिटेटेड तो फील कर ही रहे हैं ना. दे आर डिस्टर्ब ड्यू टू हिज सिंगिंग. दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट और लैंग्वेज पेरेंसिकली. ये अब ये एक फैंटास्टिक सा इवेंट ऐड किया है पोएट ने जो कि दिखा रहा है क्योस को कि उसके सिंगिंग से कितना क्योस क्रिएट हो रहा है. तो दे आर ट्रैम्पल्ड इन पैनिक. अब वो पैनिक राउट मीन्स स्टैम्पीड यानी कि मतलब वो एक दूसरे के पैरों पर चढ़ रहे. दे स्टम्बलिंग दे ट्रैम्पल्ड. वो ये मतलब वो भाग रहे हैं. दे ट्राइंग टू रन अवे. इतने ऐसा दिखा रहे कि इतना खराब गाता है. कोई इंसान इतना खराब कैसे गा सकता है कि लाइक पीपल नीड टू रन अवे. वो इतना खराब गा रहा है कि पीपल को लोग ऐसे एक दूसरे के पैरों के ऊपर चढ़ के दे आर रनिंग एंड इतना केओस क्रिएट हो रहा है. और लैंग्वेज इज अ सेंस ऑफ लाइक एक्सॉशन. लाइक इट इज मेनली एक्सॉशन एंड हाँ वैसे इसका जैसे एक्सॉशन होता है. तो ये कि जो है वो इतना मतलब देर लाइक ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट. एंड अच्छा लैंग्वेज दे आल्सो मीन्स फोर्स टू सफ़र कि मतलब वो इतने ज़्यादा देर लाइक फोर्स टू सफ़र कि उसके देखो कहीं भी जाए उसकी वॉइस सुनाई दे रही है. देखो कितनी दूर चले जाएंगे. सो दे आर लाइक सफरिंग ड्यू टू इट एंड दे फोर्स टू सफ़र. एंड इस सफरिंग की वजह से दे हैव बिकम पेल एंड सिकली. तो उसकी वॉइस इतनी खराब है डेट द पीपल दे हैव बिकम पेल एंड सिकली. एंड प्लीड वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं माई फ्रेंड वी आर नियर अर एंड ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली. यहाँ पर जो है फर्स्ट यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच है. इसको में डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन किया गया है टू अम्यूज द रीडर्स. सो माई फ्रेंड. अब यहाँ पे माई फ्रेंड का मीनिंग क्या है. यहाँ पे एक सरकास्टिक टोन में उसका है. अब देखो
अब कोई इंसान आपको इतना इरिटेट कर रहा है, आप उसमें से इतना ज़्यादा परेशान होता है, उसको फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं कहोगे, बट यहाँ पे इसका sarcastic यूज़ है। तो द पीपल आर सेइंग इन अ sarcastic टोन, माई फ्रेंड वी आर नियरर एंड हम अपनी मौत के करीब हैं, ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली, इफ यू विल नॉट स्टॉप योर सिंगिंग वी माइट डाई। तो यहाँ पे ओवर एग्जैजुरेशन है। ऑफकोर्स कोई मरेगा तो नहीं है कि एक सिंगिंग में से, नो बडी डाइज ऑफ नॉइज, बट हेयर ओवर एग्जैजुरेशन हो रहा है कि जो भीष्मा लोचन शर्मा, he sings so bad that people are requesting कि you need to stop singing, we are nearer and life is almost near to end. So here people are pleading him, but of course जो plead कर रहे हैं it is like pleading to a wall or pleading to deaf ears, because भीष्मा लोचन शर्मा is stubborn and उसको फर्क नहीं पड़ रहा and he still continues to sing as if his life is staked on it. The bullock carts are overturned and horses line on the roadside. यहाँ पे bullock carts और horses के ऊपर impact दिखा रहे हैं. Bullock carts जो है they have overturned, वो overturned हो चुके हैं, and horses line on the roadside. देखो horses हमें पता है they are like known for strength and speed. तो जो horses जो कि still नहीं खड़े हो सकते हैं, they always run. तो वो horses they're standing still, they're baffled, वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है. They are standing still on the roadside. वो सोच रहे कि ये इतनी खराब नॉइज आ कहाँ से रही है, कौन इतना खराब गा रहा है. तो ये लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं उसकी डिस्कॉर्डेड वॉइस की वजह से. ठीक है, अब ये था हॉर्सेस और ब्लैक कार्ड्स के ऊपर उसका इफेक्ट. Then, but Bhishma Lochan unconcerned goes booming out his broadside. अब भीष्मा लोचन क्या है, वो unconcerned है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. He is stubborn, he is very unbothered about all this chaos, and he will sing. He will continues to sing, booming out his broadside. मतलब वो गाता ही रहेगा. He sings in such a loud voice that sounds very harsh to others. वो उस harsh voice में he will continue to sing and he is unconcerned. The rest brutes mean pitiful animals. Rest का meaning होता है pitiful and brutes mean animals. तो the rest brutes resent the player the hour they hear it sounded. मतलब they are resenting it, they are not liking it. यहाँ पे impact on animals दिखाया जा रहा है कि animals पे भी अब जो उसकी singing है, उसकी harsh voice है, उसका एक impact है. So the rest brutes they resent the player the hour they hear it sounded. उनको जैसे वो the moment they hear it they are resenting it, they are not liking it. वो उसके against जाना चाह रहे हैं, वो उनको इतना खराब लग रहा है, तो they are resenting it. They whine and stare with feet in air. Whine मतलब जो horses और बुलक so they're like crying, they're almost about to cry. इतना खराब भीष्म लोचन गा रहा है, they're about to cry and stare with feet in air. वो अपने जो horses है he's staring his feet in the air और wonder quite confounded. Confounded का meaning होता है like something which is जो कि हम है ना काफी irritating सा हो. ठीक है, मतलब दे लाइक क्वाइट अपसेट. ठीक है, वो काफी इरिटेटेड फील कर रहे हैं, दे हाईली अपसेट ड्यू टू इट. मतलब दे वाइन एंड दे आर हाईली अपसेट बिकॉज ऑफ भीष्मा लोचन शर्मा. तो अगर दे स्टेयरिंग हिज फीट इन द एयर टू शो लाइक कि वो कितना ज़्यादा इरिटेटेड है चीज़, दे ट्राइंग टू प्रोटेस्ट. वो ऐसे साइन ऑफ प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, दे स्टेयरिंग हिज फीट इन द एयर, कि दिखा जाए कि फिर उनको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड हाउ मच दे आर डिसलाइकिंग दिस थिंग. The fishes dived below the lake in frantic search for silence. अब यहाँ पे fishes के ऊपर impact दिखाया जा रहा है. Again, this over exaggeration. ये हमें हंसाने के लिए कर रहे हैं poet. The fishes they dive below the lake. Fishes जो है lake के और अंदर तक जा रहे हैं in frantic search. Frantic means desperate search. They're like highly desperate in search of silence. वो सह नहीं सकते उस चीज़ को. And then there's डाइविंग डीप इनटू द लेक, कि वो एक ऐसी जगह पे चला इतना डीप चला जाए कि वहाँ तक भीष्म लोचन की आवाज़ ना आए. एंड दे so they're trying to search for silence in the lake. The very trees collapse and shake. You hear the crash a mile hence. अब यहाँ पे क्या है, impact on trees दिखा रहे हैं कि जो पेड़ हैं they are also
वो भी उस चीज़ से इतना परेशान चल गए, वो कोलैप्स हो रहे हैं, इतने खराब, वो इतनी लाउड वॉइस है कि जो ट्रीज हैं दे हैव कोलैप्स एंड दे लाइक शेकिंग, they like they violently shaking, and you can hear the crash, the sound of crash. When the tree fall, you can hear a loud thunderous voice, like मुझे loud voice में सुनाई देती है of collapsing of tree. So you can hear that crash a mile, and वो हमें एक माइल के डिस्टेंस तक हमें वो सुनाई दे सकता है. एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई, यहाँ पे फेदर्ड फ्लाई अगर कोई पूछे तो यू कैन से फेदर्ड फ्लाई मीन्स बर्ड. तो स्काई में जो फेदर्ड फ्लाई यानी कि जिनके पास फेदर्स होते हैं, तो यानी कि बर्ड्स. सो जो हवा में जो उड़ते हुए बर्ड्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट है. सो द feathered fly turn turtle while they're winging. turn turtle का क्या मतलब है? turn turtle, it is an idiom, एक इंग्लिश फ्रेज है, ये एक मुहावरा है which means to turn upside down. तो जो birds हैं which are flying in the air while they're winging मतलब while they're flying, कि जब वो उड़ रहे हैं they have turned turtle means they have turned upside down. वो मतलब दे स्टम्बलिंग, वो उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया कि इतनी खराब वॉइस है दैट दे नॉट एबल टू कंट्रोल देयर विंग्स आल्सो, एंड देन दे हैव टर्न्ड अपसाइड डाउन. अगेन वी क्राई वी आर गोइंग टू डाई, ओ वांट टू स्टॉप योर सिंगिंग. यहाँ पे क्या है? सेकेंड यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच है. तो यहाँ पे दिस इज रियल इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच बाय द पोएट. तो यहाँ पे अगेन द पीपल आर क्राइंग एंड दे सेइंग कि वी आर गोइंग टू डाई, कि क्या तुम अपनी सिंगिंग को रोकोगे नहीं, वोंट टू स्टॉप योर सिंगिंग. बट Bhishma's sword, यहाँ पे sword के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इट विल बी SORED. So Bhishma, he is unbothered. He soared, but Bhishma soared beyond our reach. However we plead and grumble, कि मतलब जो Bhishma के जो loud voices है, like we are like it is beyond our reach. हम कितना भी बोल लें, हम कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, हम कितना भी रो लें, he will not stop his singing and he is very stubborn. The Welkin weeps. Welkin weeps का क्या मतलब? weep, अब देखो Welkin मतलब स्काई, ठीक है. वेलकिन का मीनिंग होता है स्काई और हेवन, समथिंग लाइक दैट. ओके, स्काई और होराइजन और हेवन. वीप्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है इस चीज का. देखो स्काई इज पर्सोनिफाइड क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन दिखा रहे हैं. यहाँ पे स्काई इज शोइंग सम ह्यूमन इमोशन, सो इट इज पर्सोनिफाइड. वीप मतलब क्राई. तो जो आसमान है वो तक रो रहा है टू हेयर हिज स्क्रीच. ही सो द Sky is crying because of his screeching voice. Screech मतलब जो उसकी discorded और इतनी खराब voice है, तो उसकी वजह से the unmelodious voice, उसकी वजह से जो sky है it is also crying. And mighty mansions tumble. जो mighty mansions, जो बड़ी बड़ी buildings है, they are also kind of shaken due to it, and वो भी इस चीज़ से affect हो रही हैं, and they also might collapse. ठीक है, वो affect हो रही है चीज़ें and they also collapse. बट नाउ देर कम्स अ बिली गोट. यहाँ पे ना एक सेकेंड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है. मेन कैरेक्टर जो है दो है, तो भीष्मलोचन शर्मा एंड बिली गोट. बिली गोट क्या है यहाँ पे? बिली गोट क्या है? मजा चखाएगा भीष्मलोचन शर्मा को. बिली गोट का मीनिंग क्या है? बिली मीन्स मेल. सो नाउ कम्स अ मेल गोट, अ मोस्ट सगेशियस फेलो. सगेशियस मीन्स वाइज, कि वो काफ़ी समझदार है और चतुर है. सो हियर कम्स अ मेल गोट विच इज़ क्वाइट वाइज. एंड यहाँ पे ना ही इज क्वाइट स्ट्रेंथफुल, मतलब उसको सबको अफेक्ट हो रही है उसकी वॉइस. मतलब एवरीबडी इज लाइक क्राइंग ड्यू टू हिज वॉइस, बट he is, the male goat is quite strengthful कि he is not affected due to his voice. वो थोड़ा सा unaffected है. rather he is like angry, he is in state of anger and he like want to मतलब उसको मता चखाना चाहता है. सो ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, वो अपना सर नीचे करता है. एंड चार्जेस स्ट्रेट विद बेलो आंसरिंग बेलो, मतलब ही वो अपना सर से नीचे करता है एंड जो उसके हॉर्न्स है वो उससे उसको अटैक करना चाहता है. ही लाइक ही गिव्स अ ब्लो एंड वो उसको मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाके उसको अटैक कर देता है भीष्म शर्मा को. ही स्ट्रेटली लाइक ही गोज एंड अटैक्स हिम. So now the singer is like he is hit with the horns, so his loud noise now. अब जब वो गान तो रुक जाएगा ना उसका, of course now he will stop singing. Bellow answering, bellow का मतलब bellow means loud noise. तो जो जब जो goat था, the way he charged with his horns, the way he hit the singer Bhishma Lochan Sharma, तो जो उसने जो sound create किया, जिसके जो sound create हुई, that matched with the sound of Bhishma Lochan Sharma singing. So this means bellow answering bellow. Okay, so that sound that matched, and then the singer is now the next line, the strains of
song are tossed and whirled by brutal violence. अब देखो जो स्ट्रेन्स का मतलब क्या है, जो भी ट्यून्स है, नोट्स है द सॉन्ग, दीज आर टॉस्ड एंड वर्ल्ड बाय ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस. का जो सीन है इट शोज लाइक लॉट ऑफ ब्रूटल वायलेंस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ब्रूटल वायलेंस जैसे सिचुएशन शो कर रही है, फिजिकल क्योस शो कर रहा है, तो दिस क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ फिजिकल क्योस एंड वायलेंस. तो जो भीष्म शर्मा ही इज टॉस्ड, यानी कि ही इज टर्न्ड अपार्ट एंड उसको लाइक ही इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, उसको लाइक इज ऑलमोस्ट थ्रोन इनटू द एयर, मतलब उसको हवा में फेंक दिया गया है बाय द गोट and whirled by the blast of brutal violence. And Bhishma Lochan grants the world the golden gift of silence. Now this is an important word, golden gift of silence. अब क्योंकि Bhishma Lochan he has stopped singing, so the world, the entire world, they have got a sigh of relief. Now his singing is stopped. It like his song has come to an end, and the listeners they now can sigh with relief and they can finally get peace. So this is like how the poem ends. And then you can, as you have seen in the poem, this is a very humorous type of poem, जो कि like it does not have a very serious type of any impact on us, like a light-hearted poem have, which when you read it you may feel like laughing. So it is that type of poem which is specifically made for children. Now as we have come to the conclusion, I have a like historical context which I was talking about. Now let us discuss that. अब एज यू नो इसकी पोएम जो है ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे लिखी गई थी. तो यहाँ पर एक हम ऐसे एक आइडिया लगा सकते हैं. ऑफकोर्स अभी हम इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये चीज़ सच है, बट वी कैन गेट एन आइडिया कि मे बी दिस पोम गिव्स एन इनडायरेक्ट मीनिंग टू द, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश ने जब हमें कॉलोनाइज कर रखा था, तो जैसे ब्रिटिश यहाँ पे जो उसकी लाउड वॉइस है, भीष्म की लाउड वॉइस है, इट माइट बी compared to the British orders or the British rule, कि हम ब्रिटिश कैसे रूल करते थे and how we were affected it by it. तो यहाँ पे वो भीष्म लोचन जो है ब्रिटिश की तरह पोर्ट्रेट किया गया है, क्योंकि देखो उस टाइम का टाइम था, तो सुकुमार में होगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को हम लेट अस राइट इट इन एन वे कि जो वो चिल्ड्रन के लिए, और यहाँ पे अनसेंसर्ड वे में उसको लिखा गया है कि देखो उस टाइम तक वो ब्रिटिश के कुछ डायरेक्ट लिख देते तो वो चीज़ सेंसरशिप लग जाती है उस चीज़ के ऊपर. बट उन्होंने क्या किया, उसको डायरेक्ट ना लिखा कि उसको इनडायरेक्ट लिखा फॉर चिल्ड्रन. बट इसमें एक सेकेंड मीनिंग भी आ गया, तो ये सेकेंड मीनिंग तो क्लियर नहीं है एंड इट इज़ नो वेयर इन मैंशनड ऑल्सो. बट हाँ एक आइडिया लगा सकते हैं हम इस चीज़ के बारे में. तो ये है कि जो उसकी भीष्म लोचन को ब्रिटिश की तरह लगा कि जैसे ब्रिटिश जैसे हम पे रूल करते थे और हमें ऑर्डर देते थे एंड हाउ वर इन कंट्रोल ऑफ देम एंड हाउ वर अफेक्टेड बाय देम, सब सब लोग उससे अफेक्टेड थे. तो ये चीज़ हो सकती है एक सेकेंड मीनिंग. देन जो बिली गोट है, बिली गोट में भी कि हाउ, जैसे बिली गोट ने कैसे हराया भीष्म लोचन चला हुआ, तो कैसे हमें एक्ट करना चाहिए था अगेंस्ट ब्रिटिश, हाउ वी आर सपोज टू एक्ट अगेंस्ट ब्रिटिश. तो वो एक सेकेंड मीनिंग आता है इस फॉर्म का. बट इसके बाद तो बस इतना सा आइडिया दिया मैंने, इसे मे बी शायद कोई क्वेश्चन ना आए और तुम्हें इस चीज़ को मेंशन भी नहीं करना है, बट मैंने तो ऐसे ही बता दिया कि मे बी दिस कैन बी सम केस ऑफ सेकेंड मीनिंग. ये छोटे से आयरन हो सकते हैं अबाउट दिस पोम, बट मेनली तुम्हें इतना पता चाहिए कि हाँ दिस पोम इज लाइक ह्यूमरस एंड अ लाइट हार्टेड पोम. अब ये पोम लाइक दिस इज वेयर द पोम एंड्स. बाकी आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू दिस पोम एंड द एक्सप्लेनेशन. अगर तुम्हें इससे कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन. एंड अच्छा हम एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं साइड बाय साइड. As the poem has ended, let us now see the figures of speech. अच्छा एक चीज़ और कि जो पोइट है उसने सटायर के साथ कॉमिक एलिमेंट्स को मिक्स किया, जैसे तुम बताया ना वो सटायर क्या हो सकता है, ब्रिटिश ने जैसे हम कॉलोनाइज करते तो वो सटायर को कॉमिक एलिमेंट्स की तरह के साथ मिक्स कर दिया पोइट ने. तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट दिस पोम. सो अच्छा अब इसका जो पोएम है उसका स्टाइल देखते हैं. जो इसमें राइमिंग स्कीम है इट इज़ ए बी सी बी एंड ए बी राइमिंग स्कीम है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का भी काफ़ी यूज़ है, लाइक हेल बेंट, वेल मेंट, सिकली, क्विकली. एंड देन पर्सोनिफाइड एनिमल्स का भी यूज़ किया गया है. पर्सोनिफिकेशन में क्या क्या है, हॉर्सेस, हॉर्सेस को हमें कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, बिल्ली गोट को कंपेयर किया गया है. एंड बिकॉज बिल्ली गोट किया गया है बिकॉज यहाँ पे उसको ही यूज़ किया गया है, ही यूज़ किया गया है उसका, यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज़ किया गया, तो यानी कि इट इज़ पर्सोनिफाइड.
एंड स्काई इज पर्सोनिफाइड, जैसे मैं तुम्हें वेलकम बीच में बताया था. देन alliteration भी काफ़ी जगह यूज़ किया है, लाइक व्हेन समर कम्स वी हियर द हम्स, तो उधर MLH साउंड का alliteration है. देन एंड प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियरर, एंड उसमें D साउंड का alliteration है. इन द स्काई द फेदर फ्लाई टर्न टर्टल, उसमें FNT साउंड का alliteration है. बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए इसके अबाउट दिस. एंड देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइपरबोल का काफ़ी इसमें यूज़ किया गया है. बस ये तुम्हें एक वर्ड पता चाहिए, इसमें हाइपरबोलिक सिचुएशन का यूज़ किया गया है, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है. एंड डैट इज़ ऑल. यहाँ पे पोम जो हमारी ख़त्म हो जाती है. बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स आई माइट अपलोड देम ऑन यूट्यूब और मे बी ऑन माई प्राइवेट वेबसाइट. बट हाँ, इसके हम देखेंगे, हम क्वेश्चन आंसर वगैरह भी डिस्कस करेंगे. बाकी हियर दिस फॉर्म एंड्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग.